गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश, गोराकश नान रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, तन का चैतन्य समेत बना एक पुतला दीना। चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, तन का चैतन्य समेत बनाइक पुतला देना। सुंदर बालक दिव्या शक्ति से जीवित कीना, गौरा माने वही गणेश कहार, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। लाडली ने तुझे जन्म दियो है, किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश, लाल घर गणपति आयो रे, आयो रे, गणपति आयो रे लाल घर, गणपति
गए कैलाश कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है, मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे जन्म दियो है। भोला ने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। गौरा माँ के तुम हो दुलारे, गौरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे। काट दो सारे कलेश लाल घर, गणपति आयो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश गोराश नाल रचायो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति 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 आयो रे। అందరూ
కుండల్ని ఉత్థానం చేసుకొని పళ్ళని తీసుకుందామండి. మూడు మహామంత్రాలు. తదుపరి శ్రీ గణేష్ మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి శ్రీమాతయ్య గారు చూస్తూ అమ్మా భూమాత, దయచేసి నన్ను క్షమించండి. ప్రతినిత్యము మిమ్ములను మా పాదాలతో తాకుతున్నా. మీరు అపార కరుణ కలిగి మమ్మలను ప్రతినిత్యము కాపాడుతూ మాకు కావలసిన అన్నింటినీ సమకూరుస్తున్నారు. అందుకు ఇవే మా యొక్క కృతజ్ఞత. దయచేసి
మాలో ఉన్నటువంటి సమస్త బాధలను, దోషాలను తీసుకొని ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో మీ యొక్క ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మీ యొక్క ఎడమ చేయి మాతయ్య గారి వైపు, కుడి చెయ్యి అలాగే భూమాత మీద. శ్రీమాతాజీ, మా ఎడానాడిలో ఉన్నటువంటి అశుద్ధ ఇచ్చలను, అనిర్మల విద్యను, ఇతర దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క సామూహికతలో ఉన్న, ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని దోషాలను భూతత్వం ద్వారా శుభ్రపరచండి. అందరం కలిసి శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క మంత్రాన్ని తీసుకున్నాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేయిని ఒళ్ళో పెట్టుకొని శ్రీమాతకి వైపు, ఎడమ చేయిని భూమాత మీద పెడదాం. ఇక్కడ ఒక ప్రార్థన చేద్దాం.
శ్రీమాతాజీ మా యొక్క చిత్తాన్ని శుభ్రపరచండి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా యొక్క చిత్తాన్ని శుభ్రపరచండి. మాలో ఉన్నటువంటి దుష్ట స్వభావాన్ని కేవలం మీరే సంపూర్ణంగా నిర్మూలిస్తారు. శ్రీ కార్తికేయ మంత్రం తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కార్తికేయ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ చేయిని ఆకాశం వైపు చూపిస్తూ మన యొక్క పింగళ నాడిలో ఉన్న అధిక వేడిని ఇతర దోషాలను తొలగించమని ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి అధిక వేడిని, అహంకారాన్ని, ప్రతిస్పందనలను, అధికమైనటువంటి ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
మన కుడి చేయిలో ఎడం చేయిలో ఎలాంటి చైతన్యం ప్రవహిస్తోందో గమనిస్తూ శ్రీ మాతయ్య గారి యొక్క బొట్టును గమనిస్తూ కళ్ళు తెరిచి ఒక 5 నిమిషాల పాటు గమనిస్తూ మన చిత్తం నిశ్చలంగా మారిందా, చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేయి ఆజ్ఞాచక్రం మీద పెట్టుకొని ఎడం చేయి శ్రీ మాతయ్య గారి వైపు ఒళ్ళో, కుడి చేయి నుదుటి మీద ఆజ్ఞాచక్రం మీద పెట్టుకొని తలను ముందుకు వచ్చి శ్రీ మాతాజీ, నేను అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా క్షమిస్తున్నాను. శ్రీ మాతాజీ, నేను అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా క్షమిస్తున్నాను మరియు నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. మీ హృదయం నుంచి చెప్పండి. అందరినీ సంపూర్ణంగా క్షమించడానికి ప్రార్థించండి. శ్రీమాతాజీ, నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన కుడి చెయ్యి మన తల మాడు పైన పెట్టి 7 టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో గడియారం ముళ్ళు తిరిగే దిశలో గట్టిగా నొక్కి తల మీద ఉన్నటువంటి మాడు మీద ఉన్నటువంటి చర్మంతో సహా నెమ్మదిగా తిప్పుతూ, శ్రీమాతాజీ, మాలో ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరీకరించండి. శ్రీమాతాజీ, kindly strengthen our self-realization.
Shri Mataji, kindly establish my self-relation state. ఇలా 7 సార్లు తిప్పిన తర్వాత కుడి చేయిని మళ్ళీ యథావిధిగా ఒళ్ళు, ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనం 1994లో ఢిల్లీలో పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ లో శ్రీమాతాజీ గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు హిందీలో విందాం. భాష అర్థం కాకపోయినా కానీ మీ కుండలిని మీలో ఎలాంటి మార్పులు తెస్తుందో గమనిస్తూ ఆలోచనలు లేకుండా విందాం. सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। अब जो भी आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ उसे आप अंधविश्वास से स्वीकार मत। मैं बार बार हर जगह ये कहती हूँ क्योंकि अंधविश्वास से हमारा इस देश का बहुत नुकसान किया। जो बड़े बड़े काम करके चले गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, वो रह गए एक तरफ, और ऐसे लोग कि जो धर्म के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर सब गलत सलत रास्तों पे लोगों को डाल देते हैं। उन्होंने उनका उन महान अवतरणों का बिल्कुल पूरी तरह से कार्य नष्ट कर दिया। और हम लोग भी भोलेपन में क्योंकि खोज रहे हैं अंधकार में, तो किसी भी चीज को लिपट जाते हैं, सोचते भी नहीं कि ये चीज वाकई में हमें सत्य की ओर ले जाएगी या दुष्टता। खास करके इन लोगों को पैसा चाहिए। वो सोचते हैं पैसा ही सब कुछ शक्ति है, और लोगों को लूट करके बेवकूफ बना करके कभी कभी उन पे मंत्र डाल के और उनको मेस्मराइज करके भी रुपया लूटा जाता है। एक चीज जान लेनी चाहिए कि परमात्मा को रुपया पैसा नहीं समझता, और नहीं उनको आपके बैंक समझ रहा है। ये तो इंसान का सबका है। इस तरह के अनेक प्रकार के दुष्ट लोग आज इस कलयुग में आए, और ये घोर कलयुग, और इस अंधेरी रात में ही दिवाली जगानी पड़ेगी।
इससे बढ़कर और कोई अंधेरी रात हो नहीं सकती। अपने देश में भी इन दुष्टों ने अंधकार फैला रखा है और उसके पीछे बड़े बड़े लोग पड़े। आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस खोज में आपने क्या पाया, आपको क्या, आप क्या हो, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त, या आपकी सिर्फ जेब खाली हो गई और आप पगला गए। इस प्रकार के अनेक दुष्ट व्यभिचारी लोग कार्यान्वित है और आपके भोलेपन का फायदा उठा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी प्रकार से आप अंधी श्रद्धा मत करें। सर्वप्रथम मैं जो बात कह रही हूँ उसे आप सुनिए, उसको समझिए, और वो अगर सिद्ध हो जाए तो एक जैसे कोई धारणा हो, जैसे साइंस का हाइपोथेसिस कहते हैं, यही समझ करके आप इस पर विचार करें और ये सिद्ध हो जाए तो आपको इसे मान लेना चाहिए। अगर आप ईमानदार आदमी हैं और अगर आप अपना हित चाहते हैं तो इस सत्य को आपको मानना चाहिए। इस सत्य को जाने पर हम लोग कोई भी प्रश्न का हल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य प्रकाश और सत्य के प्रकाश में आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और सारे सृष्टि के लिए जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ लें कि आज के जितने भी प्रश्न हैं वो इन चक्रों की खराबी से आए। ये चक्र हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उत्थान हुआ, उस इवोल्यूशन के ही कहना चाहिए कि उसी के निशान, पहले हम क्या थे, फिर क्या हुए, फिर क्या हुए, आज हम इंसान। पर इंसान होने पर भी हमें केवल सत्य मालूम, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मालूम। कोई कहता है ये अच्छा है तो कोई कहता वो अच्छा है तो कोई कहता वो अच्छा है, कोई कहता मैं अच्छा हूँ तू खराब है, कोई कहता मेरा धर्म अच्छा है तेरा धर्म खराब है। इस तरह के झगड़े इसलिए हैं कि मनुष्य अभी अंधकार में है और उसको केवल सत्य मालूम। जब वो केवल सत्य को प्राप्त करेगा तभी वो जानेगा कि उसके अंदर जो ये गलत धारणा है ये बिल्कुल अंधकारमय है और वो उसे एकदम से छोड़ दे। तरह तरह की चीजें इंसानों ने बना रखी, इतनी विद्रूप और इतनी गलत, पर तो भी लोग उस पर विश्वास करते। इसलिए मैंने ये कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास रखें। हाँ, इन्होंने मेरी मन की कहा कि ठीक है, इनका कोई होगा नहीं। आप लोग जो नए यहाँ आए हैं वो किसी भी चीज पे विश्वास करें, लेकिन अपना दिमाग खुला रखें
जैसे एक साइंटिस्ट, अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी भलाई करनी है और आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर की भलाई करें, जब आप इस जिम्मेदारी में जागरूक होंगे तब आप जानेंगे कि हमें इस तरह से केवल सत्य को जानना चाहिए और पूरी तरह से मानना चाहिए। भारतवर्ष में अनेक वर्षों से अंग्रेजों ने राज, उनको तो हम लोग पागल समझते थे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कोई बड़े भारी लोग है, इनसे कुछ सीखने का खास है। हाँ, उनसे अंग्रेजी भाषा जरूर सीखे, लेकिन उनके तौर तरीके ये कोई हमें गवारा नहीं। हाँ, तो सरकारी नौकर जरूर लगे रहते थे ज्यादा। और महात्मा गांधी ने भी जो आंदोलन किया उसमें भी उन्होंने बताया हुआ कि हमें अपने देश के प्रति अत्यंत निष्ठा और हमारे संस्कृति के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का सवाल नहीं, पर इस देश का जो संस्कृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है वो आज हो रहा। मैं देखती हूँ कि टेलीविजन में भी शराब की इश्तहारात लग रहे हैं, तो सोच भी नहीं सकते थे। हमने कभी शराब चीज क्या वो देखी भी नहीं, हमको पता भी नहीं था कि क्या चीज होती, कौन सी चीज। ये तो किसी ने एक बार पूछा हमसे कि आप चीयर्स को क्या कहते हैं जब आप टेबल पे शराब आती। हमने कहा हमारे यहाँ टेबल पे कभी शराब नहीं कोई। लेकिन अब लोग सोचते हैं कि शराब कर पिए नहीं तो आप साहब कैसे, और आप साहब जरूर होना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप साहब हो जाएंगे तो आपको फिर से हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। इसके कारण तो साहब बनना, अभी भी यहाँ बैठे हैं ये सब हिंदुस्तानी बन गए, हमारे कल्चर में उतर आए। अब आप साहब बनिए और फिर उसके बाद फिर इधर आए, उसे क्या करना। खासकर प्रदेश में जितने भी मैंने हिंदुस्तानी देखे हैं, वो तो मानो जैसे कोई पेड़ उखड़ जाता है जमीन से, उस तरह के लोग। वो सजो में तो आते ही नहीं, और एक दो आते भी हैं तो 2-4 मिनट बाद भाग जाते। वो जो हमारी महान परंपरा जिसके कारण आज संयोग सजा, जहाँ की हम संत साधुओं और अवकरणों को मानते रहे, उस भारतवर्ष में आज संयोग जो सजा है, तो ये बात आप ये न सोचे कि मैंने सब कुछ इसमें काम किया। सहयोग अनादिकाल से अपने देश में चला। मार्कंडेय स्वामी जो भी कहते 14,000 वर्ष पहले हुए थे, उन्होंने भी कुंडलिनी की बात, हर जगह कुंडलिनी की चर्चा हुई। यही था कि पहले कुंडलिनी का जागरण, एक ही आदमी, एक ही गुरु, उसमें एक तरह का आवरण, और यही परंपरा रही कि एक गुरु का एक। लेकिन उसके बाद 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेकर कुंडलिनी का पूरा वर्णन 6ठे अपने अध्याय में कर दिया, जो ज्ञानेश्वर। तो उस पर जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा कि ना, ये निश्चित है, इसको मत पढ़ो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था चीज से।
इस तरह से वो चीज डुबा गई। पर 16वीं शताब्दी गुरु नानक, कबीरदास जी और महाराष्ट्र के अनेक संतों ने कुंडलिनी का वर्णन किया। कुंडलिनी के जागरण के बगैर मनुष्य का कल्याण हो नहीं सकता, साफ साफ है। तो फिर तांत्रिक खड़े हो गए कि हम बड़े कुंडलिनी के जानने वाले हैं, और इन तांत्रिकों ने दुकान खोल दी और लोग उनके आसपास मंडरा रहे। मैंने यही पाया जब मैं संसार में, कि संसार में जो आज लोग हैं, इस कलयुग में जिस कश्मकश में है, वो और तरह के लोग विचलित। जैसे हमारे पिताजी थे, वो अत्यंत शुद्ध आत्मा, माता जी भी कभी झूठ नहीं बोली थी। वो लोग हमने देखे, लेकिन उसके बाद अपना देश स्वतंत्र होने के बाद एकदम विचलित सा हो गया, और लोगों में पता नहीं कैसे पैसे की भूख सवार हो। ये हमने परदेश से सीखा, जो कि देश संत साधुओं के दान से, अवतारों के आशीर्वाद से चलता था, वो अब पैसों के ऊपर है। लेकिन ये पैसा लक्ष्मी का दान नहीं, ये तो कुछ बड़ी अजीब सी चीज है। अब जो देश बहुत समृद्ध माने जाते हैं, उनके बारे में, क्योंकि मैं देख रही धीरे धीरे उनकी हवा आ रही है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कलकत्ते। अब जैसा देश अमेरिका का देश। अब आप जानते नहीं कि अमेरिकन लोग अभी बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे, वे कोई अकल ही नहीं है। जैसे कि एक स्त्री ने 8 बार शादी की। अपने देश में अगर ऐसी कोई औरत हो तो हम लोग को उसकी शक्ल में देखो, बाबा जातू किधर जाना। तो उसकी 8वीं शादी में हनीमून में जा रही थी, तो वहाँ 5000 लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए हनीमून में जा रहे, और 10 हेलीकॉप्टर से ऊपर से लोग नीचे कूदे, फोटो लेते हुए, कुछ तो आदमियों पे गिरे, कोई पेड़ पे गिरा। मैं कहती हूँ दिल्ली शहर में भी 2 आदमी नहीं जुटे, ये तमाशा था। हमारे अंदर एक बड़ी सुबुद्धि, अब भी हम धार्मिक, इतनी मूर्खता की बात करते हैं, और उनको जो मूर्ख बनाए उसी के पीछे दौड़ते हैं। अब एक देवी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक शॉल बेचूंगी जो कि बहुत ज्यादा स्पंदित है, वाइब्रेटेड है, और जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। आप बताइए शॉल की आध्यात्मिक होती है? और उसमें लोग लग गए, लॉटरी लग गई, भगवान बचाए। ऐसे लोगों से, इतने महामूर्ख, धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और लगे धर्म के पीछे। जब वो कुछ जानते नहीं है तो उनसे कम से कम हम लोगों को तो कुछ सीखना नहीं चाहिए। दुनिया भर के चोर लोग वहां पहुंच गए और उनको बेवकूफ बनाए। वैसे है सीधे भोले, इसी तरह से कोई बहुत निकाल दे तो कोई फिर वो
शीरा निकाल दे तो कहीं कुछ कर दे, उसके पीछे भी लोग बहुत दीवार। ये सारी चीजें ऐसे ही लोग मानेंगे जिनके बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। इन लोगों के बारे में ये मुझे कहना है कि पैसे के पीछे इतने दीवाने हैं। फ्रांस देश में एक स्त्री को वेश्यावृत्ति करना मना नहीं। आप क्योंकि कमाई की बात, धंधे की बात, वो धंधा कर रही है, आप कैसे मना कर सकते? अमेरिका में तो कायदा हो न हो तो किसी को मतलब नहीं। जहाँ औरतें इस कदर अधर्मी हो, वहाँ कौन परमात्मा आशीर्वाद नहीं दे सकते। लेकिन आशीर्वाद उन्होंने जो दिए हैं वो कि इस कदर वहाँ हंगामा और उसकी जब मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ तो मंगलसूत्र तक मेरे पति उतार ले। इतना भयंकर वहां पर मामला चल, किसी की जिंदगी वहां आराम दे नहीं, सब स्पेशल ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और सब कर्जे में डूबते क्योंकि वहां हर एक चीज महंगी, वो कर्जे में लेते, ये भी ले सकते, आप फोन करके चाहे दे चीजें, अब उसी चक्कर में घूम रही है। मैं बाहर रही हूँ, मैंने देखा इस कदर पैसे का चक्कर इटली देश, आधे पार्लियामेंट के मेंबर जेल में पैसे के चक्कर। यहाँ भी ऐसा हो जाएगा शायद। और इस कदर लोगों को लूटा जाता है, छोटी बातें कहकर। जब पैसा ही सब कुछ है तो फिर स्त्री में उसकी लज्जा का कोई नहीं। ऐसे जगह राक्षसी पैदा हो तो हो रहे हैं, वहां के बच्चे ही माँ बाप को मार डालते। एक औरत ने अपने 2 बच्चों को गाड़ी में डाल के और पानी में डुबो दिया पैसा कमाने के लिए। तो अब जब आप ये देख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी नजर कहाँ है। अभी मैं आपके एडवर्टीजमेंट देखती तो हैरान होती हूँ, लड़कियां इस तरह के कपड़े पहन करके, विदेशी कपड़े पहन के, गंदे वो जीन्स पहनती जो धोते भी नहीं, वो तो पसंद है लोग। ये कहाँ इतना सुंदर सच्चे श्यामलाम देश, वहाँ की जो संस्कृति को छोड़ करके इस तरह से आप लोग भाग रहे हैं। आज योग पर बात करने की जगह पहले मुझे यही कहना पड़ा, क्योंकि जो आज हमारी मनस्थिति है वो विचलित है, वो ठहरी हुई नहीं। हम समझते नहीं, अरे इस भारतवर्ष में जो जन्म लिया है कि अनेक पुण्यों की रास लगी थी, तब आप कहना चाहिए, पर पुण्य और अपुण्य का भी विचार है, वो भी विचार छूट गया तो भी आपकी पुण्याई काम आती है, इसमें कोई शक नहीं। सहयोग के जो आज अनेक प्रताप दिखाई देते हैं, उसका कारण मैं नहीं, आप लोगों ने सहयोग को स्वीकार करते ही एकदम से फूट पड़े और सारे वातावरण में फैला हुआ मुझे नजर आ रहा है। जमाना बदलता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि आप ही के माध्यम से परमात्मा का ये प्यार करने वाला। कोई भी बात समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम चाहते क्या। तो सत्य ये है कि आप ये मन बुद्धि अहंकार भावनाएं आदि कुछ नहीं, आप शुद्ध आत्मा स्वरूप है। आप शुद्ध आत्मा स्वरूप, और इस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं रहा, बहुत आसान। सह का मतलब आपके साथ जो माने पैदा हुआ, आपके साथ पैदा हुआ ये योग का अधिकार, जिसे आप प्राप्त करें और अपने जीवन की जो अंतिम दशा, अंतिम स्थिति है उसे प्राप्त करें। और वो स्थिति जिसे हम योगी कहते हैं, जबकि योग घटित हो गया इस चारों तरफ फैली हुई सृष्टि से, परमात्मा की सृष्टि से जब हमारा योग हो गया तो हम अकेले कहाँ रहे, हम सब एक हो। और ये प्रेम की शक्ति स्वयं साक्षात सत्य। लोग कहते माँ सत्य प्रेम कैसे हो सकता, प्रेम सत्य कैसे। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके बारे में सब जान जाते हैं कि नहीं जान जाते। तो जब आप इस सत्य को प्राप्त करते हैं तो ये प्रेम बन के ही बरसता है। ये हम लोग सोच नहीं सकते। तो कोई सत्यवादी, कोई आदमी हमारे यहाँ कोई सत्यवादी, तो लोग अरे बाप रे वो सत्यवादी है, उसके पास जाने से पहले सोच लो पता नहीं खड़ाक से मार। क्योंकि जितने सत्यवादी होते हैं वो कभी कभी बड़े कठिन हृदय होते हैं और ऐसी बातें कह देते कि दिल टूट जाता। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम, जो सत्य स्वरूप है, वो हमें हर तरह का आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद और कुछ नहीं, हर तरह का आशीर्वाद। कोई सोचेगा कि माँ मैंने इतनी गलतियां कर दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं। सब माँ तुम सत्य को खोजने आए हैं तो ये तुम्हारा अधिकार। सब गलतियां माँ। फिर कोई कहे माँ मुझे मुश्किलें, सब मुश्किलें ठीक, ऐसी मुश्किलें ठीक हो जाती कि इंसान हैरान हो जाता है ये मुश्किलें कैसे ठीक हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सारी मुश्किलें मेरी ठीक है। सो ये बहुत ही कमाल की चीज कि जो आप आशीर्वादित हो जाए, उससे फिर आपकी सुरक्षा है। एक देवी जी आई थी, पहले माँ मैं पहले बहुत डरती, अब मुझे क्या हुआ, मुझे डर ही नहीं मालूम डर क्या थी, मैं डरती नहीं। कहते ना सच को आंख से, वो सही बात कि आप सत्य के इनके पर खड़े हुए हैं तो आपको दुनिया से किसी से डर और सत्य कहने में भी आप घबराते, क्योंकि उसी सत्य के कारण ही आप आशीर्वाद। इसके कितने कितने फायदे लोगों को हुए। मुझे रोज ही न जाने कितनी चिट्ठियां आती, ये हो गया तो कहीं वो चमत्कार हो गया, तो कहीं वो चमत्कार हो गया।
एक साथ से मैंने कहा इतने चमत्कार आ रहे तुम लिखना शुरू करो, मेरे पास तो टाइम 1 महीने का कहता मेरे सर तक दोनों तरफ से चल रहा है, मैं क्या लिखूं बताइए, इसमें से कौन सा आप सिलेक्ट है। कोई मेरे पास टाइम नहीं, मत लिखो छोड़ो। ये चमत्कार है, ये प्रभु का प्यार। वो आपके पिता और कोई भी पिता यही चाहेगा कि बेटा मेरा मेरी ही गति पर गए। उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम में इतनी शक्ति है कि दुनिया की कोई सी भी शक्ति उसे टक्कर नहीं ले सकती। सिर्फ हमारे हृदय में इतना स्थान होना चाहिए, हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें उनकी शक्ति समा सके। आप ही के माध्यम से न जाने क्या क्या कमाल हो सकता है और कमाल होता है। आप अपने को जानते ही नहीं, इसीलिए सहयोग से अपने को जानते, इसे जानते ही आपके हृदय में మనందరం మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద ఉంచుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉన్నాం.
లాస్ట్ మహామంత్రం తీసుకుందామండి అందరం కలిసి. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మనందరం మన యొక్క కుండల్ని ఉత్థానం చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ఉదయం ప్రసాదించిన ఈ ధ్యాన స్థితికి మీకు ఇవే మా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. శ్రీ మాతయ్య గారు హిందీలో చెప్పిన దాన్ని క్లుప్తంగా ఒక 2 నిమిషాల్లో తెలుగులో చెప్తానండి. ఇది 1994లో ఢిల్లీలో సహజయోగ పరిచయ కార్యక్రమం శ్రీ మాతయ్య గారు ఇచ్చారు. నవంబర్ 11 అనుకుంటాను. ముఖ్యంగా చెప్పింది ఏమిటంటే, అంధవిశ్వాసంలో మనుషులు వాళ్ళు ఏ వైపు వెళ్తున్నారు అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంటుంది. జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగు లేకపోతే ఆ చీకటిలో మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలియని పరిస్థితి మనుషులకు వస్తుంది. ఈ కలియుగంలో ఇది అత్యంత ఎక్కువగా మనుషులపైన ఆ ప్రభావం ఉంది. మనుషులు కేవలం డబ్బే ప్రధానంగా వెళ్తున్నారు. ఈ డబ్బు గురించి ఎంతో మంది ఆ గురువులు మీకు ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇది సరైందని చెప్పేసి వాళ్ళ అంధకారాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని డబ్బు గడించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. 12వ శతాబ్దంలో శ్రీ జ్ఞానదేవుడు కుండలిని గురించి 6వ చాప్టర్లో విశదీకరించారు. ఆ తర్వాత శ్రీ గురునానక్,
శ్రీ కబీర్, అలాగే ఎంతో మంది సంత సాధువులు సంత్ సంత్ సాధువులు సాధులు సాధువులు సారీ మహారాష్ట్రలో కుండలిని గురించి చెప్పారు. కేవలం కుండలి ద్వారా మన యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది ఆ యొక్క వెలుగుని ఎప్పుడైతే మనం చూసామో దాన్ని పొందాము, అది పూర్తిగా పొందిన తర్వాత లేదా దాన్ని అనుభూతి చెందిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా నమ్మాలి. నమ్మి మన జీవితాన్ని ఆ వెలుగులో నింపుకోవాలి. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియలిజం అంటే వస్తు వ్యామోహం మన మీద కూడా పడుతుంది. దాని ద్వారా మన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మనం పొందలేం. ఇది క్లుప్తంగా శ్రీమాతే గారు చెప్పింది. సహజయోగంలో ఇప్పుడు మనకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం దొరికింది అనే దానికి రుజువుగా మన చేతుల్లో చల్లటి వాయు తరంగాలు, అలాగే ఆలోచన లేనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి స్థితి మనకు దొరుకుతుంది. ఈ యొక్క అనుభూతిని మరింతగా పెంచుకొని ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మన నిజ జీవితంలో వాడుతూ మిగతా మన తోటి మానవులందరికీ కూడా పంచుతూ ప్రపంచాన్ని ఒక ఆహ్లాదకరం, అందమైనటువంటి, ఆనందమైనటువంటి ప్లేస్ గా తయారు చేయడానికి మన వంతు మనం అందరం కృషి చేద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
శ్రీమాతాజీ అండి.